Good evening, all of you. થોડું વધારે અવાજ કરે તો સાહેબ પાસથી વધારે મળશે, so we should give him a much better good evening. So let's all say good evening, sir. Good evening, sir. That's nice to have all of you here. I am Alpesh Parekh. I am one of the executive board members at Ahmedabad Management Association, and today it's my great privilege to have Anil sir with us today, and I'm going to just take few minutes introducing sir before the whole session. Sir will tell us and letting us know how we can strengthen our relationship with police and the community. You know, આપણે બધાને generally બીક લાગતી હોય, આમ પોલીસનું નામ સાંભળ્યું નથી ને આમ થોડો પરસેવો છૂટી જાય. And sir is here to tell us about a lot of things on those lines and help us in understanding this in a much better way. But before that, let me have the privilege of introducing Anil Pratham sir. He is an IPS officer of the 1989 batch, presently at post of DGP Police Reforms. He looks after reforms, welfare, community policing and coordination between various departments. He has worked earlier in various districts and cities on law and order and investigation, training, women issues, children issues, human trafficking, wildlife, economic crimes, cyber crimes, traffic, narcotics, police research, senior citizens. So he's also been had a deputation to Central Industrial Security Force, which enabled experience in various sectors. Prior to he becoming an IPS, he had worked with Canara Bank, Hindustan Petroleum Corporation, Unit Trust of India, and Life Insurance Corporation of India. Anil sir is from Sri Ram College of Commerce, Delhi, and he basically carries a 360-degree perspective of police, the life inside the department, the life outside the department. So I'm sure he's going to gel very well with what we feel to how he can be of help to us. Sir, all to you. But before we do that, I would like to welcome you officially with this small little token. Thank you for being here with us. Thank you so very much, sir. All over to you, sir. You may want to. Today we are here as a part of community outreach program. As we all know, AMA is to coordinate all type of people, all type of industry, all type of issues and all type of agenda. So we had discussed earlier that we in police department we have Suraksha Setu Society. It also has some objectives. Suraksha Setu Society is a NGO, you can say. It is a NGO. It is a registered body in Society Registration Act, and it doesn't act like a government department. That is the beauty, that it is headed by the police officer, but it doesn't act as a policing style. So basically जो आइडिया अभी नीलेश भाई ने बताया कि जो गैप है, जो थोड़ा सा डाउट रहता है, तो सुरक्षा सेतु सोसाइटी का पर्पज ही ये है कि हाउ टू ब्रिज दैट गैप, कि वो कैसे जो एक डर है या एक डिस्टेंस है, कैन इट बी रिड्यूस्ड. आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव in Suraksha Setu Society as a NGO. This is what we are supposed to do. क्या अभी पिक्चर चालू हो रही है कि बाकी है? कुछ प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं. So this actually we had made a small movie. It has covered last 10, now it is 11 years working of Suraksha Setu Society. We had done so many things in different districts with different stakeholders. So we had tried
to compile them all so that one can understand. 2012 में ये सुरक्षा सेतु सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई थी और जो इसका पर्पज और ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बताया ओवरऑल जनरल है कि कैसे कुछ प्रोग्राम हम करें. जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, ओनली पर्पज दिस, हाउ if I can get say 50% saying good thing about me, about police department, so it is a win-win situation for me at least. You will also be happy कि okay ठीक है, things are good. So that is the just idea. In different departments like district and city and our departments, CID crime, anti-corruption branch, ATS, traffic department, so through them हाँ चालू रखिए आवाज करिए, through them we have utilized our projects. દરેક ક્ષેત્રે आप इसको एक बार અગ્રેસર देख लेते એવું हैं, छह આપણું सात રાજ્ય. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી સફળતાના 10 વર્ષ. દરેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર એવું આપણું રાજ્ય ગુજરાત. કોઈ પણ નવી પહેલ કરવામાં આપણું ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં હંમેશા આગળ રહ્યું છે. ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગની આવી જ એક અનોખી અને જનહિતકારી પહેલ એટલે સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્યરત થયેલી સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી. વર્ષ 2012માં ગૃહ વિભાગ દ્વારા રાજ્ય કક્ષાની 1, પોલીસ કમિશનર વિસ્તારમાં 4 અને જિલ્લા કક્ષાએ 34 એમ સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 39 સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેનો મુખ્ય હેતુ હતો રાજ્યની પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે મિત્રતાનો સેતુ રચવો, જેમાં મુખ્યત્વે જનતા અને પોલીસ એકબીજાને સહકાર આપે, પોલીસની શક્તિઓનો સામાજિક કામોમાં ઉપયોગ વધે, પોલીસ અને પ્રજાનો એકબીજા પ્રત્યે વિશ્વાસ વધે, નવતર પ્રયોગો થકી રાજ્યમાં જાહેર સલામતી વધારવી અને પોલીસની શ્રેષ્ઠ કામગીરીને બિરદાવવા જેવી તમામ બાબતોને આવરી લેવામાં આવી છે. મુખ્ય હેતુની સાથે જુદા જુદા 13 હેતુઓ નક્કી કરી રાજ્યના નાગરિકો માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યની તમામ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ઉપર રાજ્ય કક્ષાની સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીનું મોનિટરિંગ રહે છે. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત કરવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પૈકીની મહિલા સુરક્ષા અને મહિલા સશક્તિકરણ માટેની પ્રવૃત્તિઓમાં મહિલાઓને સ્વરક્ષણ માટે જુડો, કરાટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જેનો અત્યાર સુધી 14.28 લાખ મહિલાઓએ લાભ લીધો છે. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા કાર્યરત એવી અતિ મહત્વની યોજના એટલે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ યોજના SPC. ધોરણ 8 અને ધોરણ 9ના શાળાકીય અભ્યાસથી જ બાળકોમાં કાયદાનું જ્ઞાન, શિસ્ત અને નાગરિક તરીકેની નૈતિક ફરજો વિકસે તે SPCનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ પ્રયાસના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓમાં પારિવારિક ફરજોની ભાવના, સામાજિક ફરજો અને પર્યાવરણનું જ્ઞાન તેમજ હકારાત્મક વલણ વિકસે છે, જેના માટે બાળકોને તમામ પ્રકારની રાષ્ટ્ર સેવા અને સમાજ સેવા માટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં લીડરશિપ અને ટીમ સ્પિરિટના ગુણો વિકસે છે. રાજ્યના દરેક પોલીસ સ્ટેશન દીઠ એક શાળાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી કુલ 4.15 લાખ વિદ્યાર્થીઓને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ યોજના અંતર્ગત તાલીમ આપવામાં આવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં દારૂના વ્યવસાયમાં રોકાયેલી 15,329 મહિલાઓને આ વ્યવસાય છોડાવી તેમનું પુનર્વસન કરી અન્ય વ્યવસાયો તરફ વાળવામાં આવી છે. બાળકોની સુરક્ષાની વિશેષ દરકાર રૂપે રાજ્યના 11.95 લાખ બાળકોને પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી હથિયાર અંગે, પોલીસ સ્ટેશનની કાર્યવાહી અંગે તેમજ વ્યસન મુક્તિ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિકના નિયમો અંગે જાગૃત કરવા જરૂરી તાલીમ આપવામાં આવે છે. તો ગુમ થયેલા બાળકોને શોધવા માટે જરૂરી પ્રચાર પ્રસાર માટે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી પોલીસને મદદરૂપ થાય છે. સમગ્ર રાજ્યના સિનિયર સિટીઝનનું તેમના નજીકના પોલીસ સ્ટેશનોમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવે છે, જેનાથી તેઓ કોઈ ગુનાહિત ઘટનાનો ભોગ ન બને અને પોલીસ નિયમિત તેમની દેખરેખ રાખી શકે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નાના મોટા દરેક શહેરમાં ટ્રાફિક નિયમન એ મોટી સમસ્યા છે. આ સમસ્યાના નિવારણ રૂપે ટ્રાફિકના નિયમો અંગે લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવવા પ્રચાર પ્રસાર માટે બેનર, જુદા જુદા સ્થળોએ હોર્ડિંગ્સ, ચિત્ર સ્પર્ધા, શાળા અને કોલેજોમાં ટ્રાફિક નિયમન અંગેના સેમિનાર અને જાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી 20.93 લાખ બાળકોને
ટ્રાફિકના નિયમો અંગે તાલીમ અને જાણકારી આપવામાં આવી છે. જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇન તેમજ મહિલા સહાયતા કેન્દ્રની સ્થાપના કરીને કૌટુંબિક ઝઘડાનું તથા ઘરેલુ હિંસા સામે રક્ષણ મેળવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો નોકરી કરતી મહિલાઓને રાત્રે 8 વાગ્યા પછી ઘરે જવા માટે પીસીઆર વેનની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા સમયે હતાશા અનુભવતા હોય છે. આવા સંજોગોમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આત્મહત્યાના પ્રયાસો કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ હતાશ ન થાય તે માટે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી સમગ્ર રાજ્યમાં મનોચિકિત્સકો, પ્રોફેસરો, નિષ્ણાતો અને શિક્ષકો દ્વારા કાઉન્સેલિંગના આયોજન કરે છે, જેનાથી કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ હતાશામાંથી બહાર આવી શક્યા છે. રાજ્યમાં રહેઠાણની સોસાયટીઓમાં ચોરીના ઉપદ્રવમાં ઘટાડો થાય અને ગુનેગારોને ઓળખી શકાય તે માટે સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા માટે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા નાણાકીય સહયોગ આપવામાં આવે છે. રાજ્યમાં દારૂનું દૂષણ ઘટે તે માટે નશાબંધી અંગેનો બહોળો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે છે, જેના માટે શેરી નાટકો તેમજ આઉટડોર હોર્ડિંગ્સ જેવા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઘણા બધા ગુનાઓ કાયદાની અજ્ઞાનતા તેમજ જાગૃતતા ન હોવાને લીધે જ બનતા હોય છે. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર અંગેની સામગ્રીનું નિર્માણ અને વિવિધ માધ્યમો થકી જન સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટ્રાફિક અવેરનેસ અને એજ્યુકેશન, મહિલા સુરક્ષા, નશાબંધી, સાયબર ક્રાઇમ, બાળકોની સુરક્ષા, સિનિયર સિટીઝન્સની સુરક્ષા, અંધશ્રદ્ધા અને કુરિવાજો જેવા મુદ્દાઓ અંગે ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મના નિર્માણ કરવામાં આવ્યા છે. આ ફિલ્મો નાગરિકો સુધી પહોંચે તે માટેના કાર્યક્રમોની સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ માટે યુટ્યુબ ચેનલ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના પર દરેક વિડીયો નિયમિત રીતે અપલોડ કરવામાં આવે છે, જેને લોકો નિયમિત રીતે જુએ છે અને વિવિધ મુદ્દાઓ અંગે માહિતગાર થઈ જાગૃત થાય છે. જનજાગૃતિ અભિયાનના ભાગરૂપે સુરક્ષા સેતુ રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ રથમાં પ્રચાર પ્રસારની સામગ્રી જેવી કે પોસ્ટર, લીફલેટ, બુકલેટ, ડોક્યુફિલ્મ નિદર્શનની વ્યવસ્થા તમામ રાખવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 14 સુરક્ષા સેતુ રથ દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓ અંગે જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવી રહી છે. વિવિધ સ્થળોએ પ્રચાર સાહિત્યની વહેંચણી અને ડોક્યુફિલ્મોનું નિદર્શન થઈ રહ્યું છે, જેનો દરેક નાગરિકો હોંશે લાભ મેળવી રહ્યા છે. લોકોમાં વિવિધ બાબતો અંગે જાગૃતતા વધતા રાજ્યમાં ગુનાખોરીનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે. તદુપરાંત પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે પ્રેમ ભાવ વધે તે માટેના વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના આયોજનો, રમતગમતના આયોજનો, ટ્રાફિકને લગતા કાર્યક્રમો, અલગ અલગ તાલીમો, લોક જાગૃતિ સેમિનાર, કુટુંબ સહાયતા કેન્દ્ર, ફિશરમેન અવેરનેસ કાર્યક્રમ, જુદા જુદા વિષયો પર શેરી નાટકો, જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇનનું સંચાલન, ગરિમા સર્વે જેવી કેટલીય પ્રવૃત્તિઓ અત્યાર સુધી કરવામાં આવી છે. સમાજના દરેક વર્ગ, મહિલાઓ, બાળકો, સિનિયર સિટીઝન્સ, વંચિતો દરેકને લગતા મુદ્દાઓ અને સમસ્યાઓને આવરી લેવામાં આવી છે. પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે મિત્રતાના સેતુ રૂપે ઘણા કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં ઘણા કાર્યો કરવાના આયોજનો છે. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીને 10 વર્ષ પૂરું થયેલ છે અને એની કામગીરી દર્શાવતું એક મેગઝીન તૈયાર કરવામાં આવશે. ટેકનોલોજીના યુગમાં સોશિયલ મીડિયાની મદદથી લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવવાનો અગ્રેસિવ પ્રયાસો કરવામાં આવશે. સુરક્ષા સેતુ રથ રાજ્યના છેવાડાના ગામડાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. પ્રજામાં જુદા જુદા કાયદાઓ અંગે જનજાગૃતિ વધારવા જરૂરી કાર્યક્રમો, સેમિનારો, વર્કશોપ્સના ઉપયોગ કરવાનું આયોજન છે. મહિલા સુરક્ષા, બાલ સુરક્ષા તેમજ વરિષ્ઠ નાગરિકોની સુરક્ષા અંગે વિશેષ કાર્યક્રમોનું પ્લાનિંગ અને અમલીકરણ પણ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારના પ્રજાલક્ષી અભિગમનું એક અનોખું ઉદાહરણ એટલે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી. પોલીસ અને પ્રજાના સુમેળભર્યા સંબંધોમાં મહત્વની કડી એટલે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી. પોલીસ અને પ્રજાની મિત્રતાનો સેતુ એટલે સુરक्षा सेतु सोसाइटी. मैं करीब 1.25 साल पहले मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी एज ए डीजीपी पुलिस रिफॉर्म. तो ये जो वीडियो है करीब हमने मेरे ट्रांसफ़र के 5-6 महीने के बाद बनाया.
तो सबसे पहले हमने ये ही ट्राई किया कि अभी तक जितना भी काम हुआ है उसको कैसे कंपाइल किया जाए। तो वो सब काम कंपाइल किया। एक हमने अपनी वेबसाइट बनाई, पहले भी थी लेकिन उसको फिर रिवाइज अपडेटेड वेबसाइट बनाया, एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो इनिशियली वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का पर्पज़ यही था कि अभी तक का जो काम है वो हमारे डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो वो सब हो चुका है। देन वी हैड प्लान्ड दिस स्मॉल वीडियो, और इसमें हमने, जैसे आपने सुना, हमने आयोजन भविष्य का किया। तो जो भविष्य का आयोजन है उसी का ये एक पार्ट है कि वी वांट प्रोएक्टिवली टू कनेक्ट विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। तो उसी सिलसिले में, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हम यहाँ आ जाए हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई वुड लाइक, आपके जो कोई व्यू हो या प्रश्न हो या सूचन हो, हाउ टू गो अहेड। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 11 years, सो वी कैन टॉक फर्दर, प्लीज। ट्रैफिक की समस्या जब तक हल नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। अहमदाबाद में आप जब देखते हो जोमेटो, स्विगी, बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स रॉन्ग साइड में आते हैं, वो पहले हल कीजिए। प्लस जैसे कि मुंबई पुलिस के साथ का इवेंट होता है उमंग करके, आई वुड रिक्वेस्ट कि हम क्यों ना ऐसा इवेंट करें जिसमें पुलिस की फैमिली को भी अच्छा लगे। ओके, ठीक है। और कोई एक दो प्रश्न और? सर, इस तरह के प्रोग्राम अगर हम करना चाहें, मैं आरएसएस में हूँ और मैं अटीरा में 25 इयर्स जॉब करके भी रिटायर्ड हुआ हूँ, और मैं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम एज ए फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। तो हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट, आई कैन टेक बेनिफिट्स एंड आई कैन रीच आउट। और कुछ प्रोग्राम हम करना चाहते हैं तो कैसे, हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट यू? ओके, मैं 2 का जवाब दे देता हूँ, देन यू टेक ओवर। पहले मैं नंबर 2 का प्रश्न देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट देखिएगा। वेबसाइट में हमने ये क्लियरली लिखा हुआ है, हाउ ए एनजीओ और ए अलर्ट सिटीजन कैन जॉइन अस एंड हेल्प अस। उसमें हमने हमारे 17 ऑब्जेक्टिव्स और अभी 26 एक्टिविटीज़ को हम फोकस कर रहे हैं उसके अंदर। पहले 16 एक्टिविटीज़ थी, अभी हमारी लास्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हुई तो उसमें 10 और हमने ऐड करवाई हैं, जिसमें पब्लिक एज इंडिविजुअल और एज एनजीओ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी एनजीओ हैं। हम पहले यही मांगते भाई आर यू रेडी विद अस, तो वो जो रेडी है उनके नाम हमने ऑलरेडी उसमें डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और उसमें हमने एक फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, सुरक्षा सेतु सोसाइटी ही टाइप करेंगे, गुजरात स्टेट, वो आ जाएगी, उसमें है। तो वही आप, तो उसमें हमने एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आप कैसे हमें अप्लाई कर मेल कर दीजिए। उसके अंदर मेल भी है और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन भी दिया हुआ है। तो आप एक बार देख के वो फॉर्मेट निकाल के हमें मेल कर दीजिएगा कि हम, दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू वर्क in such a way and my work is about objective number. We have identified the objective numbers. You have to work homework कि my work is aligned with this objective number or this activity. तो फिर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, स्टेट लेवल की सुरक्षा सेतु सोसाइटी तो है ही, हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में अलग लोकल लेवल पे भी सुरक्षा सेतु सोसाइटी है, जिसको हम यहाँ से सुपरवाइज करते हैं, ज़रूरी मार्गदर्शन देते हैं और फंड भी दे देते हैं, जो फंड तो वो भी होता है। तो दैट वी आर डूइंग। जो ट्रैफिक के बारे में जो बात की, ट्रैफिक हमारा वन ऑफ द फोकस एरिया है ही, और ट्रैफिक की समस्या बहुत ही डिफ़िकल्ट है। शायद आप लोगों को कुछ को याद हो, जब सबसे पहले मेरी प्रमोशन के बाद जो पोस्टिंग थी वो डीसीपी ट्रैफिक अहमदाबाद ही था, और उस समय जो ट्रैफिक की समस्याएं थी और उनके जो सॉल्यूशन थे, जो सजेशन हमने उस समय दिए थे,
वो आज भी है तो एज इट इज, भले कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है। जैसे आपने कहा कि इसको ख़त्म करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, आपके पास कोई 2 सॉल्यूशन है कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ प्लीज़। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, देन बड़ौदा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड सूरत एसएमसी। तो सूरत में देयर आर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 200 जितना ओवर ब्रिज बन चुके हैं। अहमदाबाद में खाली 79 है, उसमें 2 टूट गए। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेसिकली रूट कोर्स में जो L&T काम कर रहा है, लार्सन एंड टुब्रो इज नंबर इंटरनेशनल क्वालिफाइड एज ए कॉन्ट्रैक्टर, बिल्ड आई मीन a company which is giving guarantee। बॉम्बे का सीलिंग उन्होंने बनाया 35 किलोमीटर। आपका मतलब ज़्यादा ओवरब्रिज बने? हाँ, ओवरब्रिज अच्छे और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा बने। L&T का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। there should be no corruption। I mean, I should not say, but there is a problem with the anti-corruption मतलब department। सोल्यूशन आपका यही ब्रिज होगा, बनने चाहिए बस। ब्रिज की संख्या बढ़े बढ़े, और क्वालिटी वाला बने। क्वालिटी वाला इंडिया, ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद। नंबर 2, माय ओपिनियन इज कि जो बच्चे कॉलेज के हुए या स्टूडेंट के 2 व्हीलर्स मांगते हैं बट दे ड्राइव वेरी रफली, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड टेक ओवर, शुड चेक इट आउट कि वो कितनी स्पीड में चला रहा है। अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले ट्रैफिक शुड विजिट द स्कूल एंड आल्सो कीप अ चेक ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, मतलब पेरेंट्स की जवाबदारी होनी चाहिए और कुछ पुलिस भी प्रोएक्टिवली हाँ, स्कूल में विजिट करें। रूट कोर्स का लास्ट 2 डेज में सर यहाँ पे 2 फेटल एक्सीडेंट हुए हैं ये एरिया में। 2 बच्चे को बाइकर्स को मार दिया डंपर वालों ने। तो यू शुड स्पेसिफाई डंपर्स, ऑल डंपर्स शुड हाँ सर, चेक। उसका कोई नंबर प्लेट नहीं होता है। जो डंपर आते हैं ना, वो जो सीमेंट वाला बिल्डर, वो दिन में घुमा रहे हैं। आई डोंट थिंक दे हैव परमिशन, इवन इफ दे हैव परमिशन दे डोंट हैव क्लियर नंबर प्लेट एंड दे रन अलोन। ठीक है, वायलेशन आप बताइए प्लीज। मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। मेट्रो अभी जैसे दिल्ली में कितना नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क अभी अहमदाबाद में नहीं। प्लीज। Good evening, sir. My name is Abhi Thadani. Sir, in many countries there is a concept of friends of police. You must be aware of that. तो उसमें जो लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका बैकग्राउंड चेक करके उनको एज फ्रेंड्स ऑफ पुलिस है, और उनसे आज क्या हो रहा है, अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ तो सबसे पहला मुझे सवाल ये पूछा जाता है कि आपका क्या लेना देना उससे। तो अगर वो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, मान लो मेरा आपके पीछे बैठी हुई है फ्रेंड्स ऑफ वुमेन बैठी हुई है, नहीं, तो फ्रेंड है। अच्छा, पुलिस आई डोंट नो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट सिस्टम है, आप बताएंगे आपको। आपका क्वेश्चन ले लिया, अभी एक लास्ट आप बताइए। सर, अहमदाबाद में पहले वो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क था, अभी मेरे ख्याल से फंक्शनिंग नहीं है। तो उस वक्त 4 साल पहले क्या था कि वो पार्क फंक्शनिंग था, तो स्कूल के बच्चों की वहाँ विजिट होती थी, तो बच्चे ही पेरेंट्स को रोकते थे कि पापा रेड लाइट है, नहीं जाना चाहिए। तो ये अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंसेप्ट वही है कि जो स्विगी जोमेटो वाला जाता है तो उसने पढ़ा ही नहीं है कि मुझे रॉन्ग साइड में नहीं जाना है। ठीक तो है, बच्चों का अवेयरनेस होगी तो उतना अच्छा होगा। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का यूज, यस। Okay, thank you. Water tank also joined with the tractor and they run very difficult. एक आप लास्ट बोल दीजिएगा, फिर मुझे जवाब भी देना, बहुत ज़्यादा हो गया। सर, मेरा सजेशन ही है कि हम पूल व्हीकल का यूज़ करें, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक घर में है, 3 लोग हैं, 4 व्हीकल है और एक ही जगह पे जाना है या फिर डिस्टेंस पे जाना है, तो पूल व्हीकल का यूज़ करें, उसका अवेयरनेस करें। ओके, थैंक यू। अभी मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, उसके बाद कुछ प्रश्न होंगे तो लेंगे। बहुत ही वाइब्रेंट सजेशन आए, बहुत ही इफ़ेक्टिव सजेशन आए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। जैसे मैंने बताया 94-95 आई वॉज DCP ट्रैफिक इन अहमदाबाद। कितने लोग जानते हैं पता नहीं, यू नो, ठीक। उस समय यही समझो प्रश्न, और इनके जो हमने कुछ सॉल्यूशन किए थे वो बताता हूँ। नंबर 1, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क उसी समय स्टार्ट हुआ था। आपको याद होगा तो AK टंडन साहब DGP होते थे यहाँ, और
मानेक शाह होमगार्ड के जो थे डीजी, मानेक शाह साहब पारसी साहब थे, तो वो भी होमगार्ड वगैरह में थे। तो उस समय हमने बच्चों के लिए रोड सेफ्टी पेट्रोल एक कंसेप्ट चला था। तो वो बच्चे ओनली फॉर ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए बच्चों को हम ट्रेनिंग देते थे, उनकी रोड में उनको ले जाते थे, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस करवाते थे। तो ये कंसेप्ट उस समय भी चलता था। दूसरा इनिशिएटिव रिलीफ रोड और महात्मा गांधी रोड उस समय बहुत कंजेस्टेड होता था। रूपाली के आसपास का जो सर्कल था ये भी गड़बड़ रहता था। तो अगर आपको याद हो तो रूपाली सर्कल के आसपास एक जाहिरनामा निकलवाया गया था ताकि वो सर्कुलर में नोटिफिकेशन हो, जो लोग इधर से भी आते थे उधर से भी आते थे, और उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, छोटा मोटा फायरिंग भी हुआ था, आपको याद होगा। तो एनक्रोचमेंट और वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करना, मतलब कई बार फायरिंग तक भी सिचुएशन आती है, लेकिन वो हुआ। उसी समय जो सीजी रोड था, सीजी रोड उस समय आइडियल रोड था। जो पहली बार केशव वर्मा साहब थे और कुछ दूसरे वो आर्किटेक्चर जो ये लोग सब लोग डिजाइन किया नो पार्किंग का, और वो पार्किंग प्लेसेज किया, वो सब किया था। अभी जो आपने पेपर में अभी अभी पढ़ा कि टीआरबी को निकाल दिया गया, टीआरबी को निकाल दिया गया। टीआरबी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? टीआरबी की उत्पत्ति उसी समय हुई थी जब हम ऑन द स्पॉट फाइन, दंड, जो इनको कंट्रोल करने की बात आपने की ना कि इनको पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो पहली बार उस समय गुजरात में फाइन लेना स्टार्ट हुआ। पुलिस को पावर मिली कि भाई आप फाइन लो, और हम पुलिस वाले मीमो फाड़ते थे उसके रॉन्ग पार्किंग के या रैश ड्राइविंग के या स्पीड ड्राइविंग के, XYZ के या टोइंग के। टोइंग भी उसी समय स्टार्ट हुआ था, तो वो करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे वो पैसा आने लगा। वो पैसे को क्या करें फिर बाद में सोचा गया, फिर उसका फंड बना, और उस फंड में फिर और उसका कैसे इस्तेमाल किया, फिर ये ट्रैफिक ब्रिगेड का कंसेप्ट बाद में चालू हुआ। ये कंसेप्ट सब किए गए थे। उस समय भी कुछ हार्ड सजेशन हमारे, ये सब तो चलो इम्प्लीमेंटेशन के सजेशन रहे। उस समय भी एक दो सजेशन ऐसे थे जो बहुत ही अनपॉपुलर सजेशन थे, पर दिए गए हमारी तरफ से। एक सजेशन ये था कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, कैपेसिटी ऑफ रोड, क्या उसमें कोई कोऑर्डिनेशन हो सकता है? क्या गाड़ियों की संख्या कम हो सकती है? तो एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें विकास मॉडल है, इंडस्ट्री मॉडल है, जो भी है, पर ये हकीकत है। वो कैसे हैंडल करें, आप डिसाइड करें, मेजोरिटी डिसाइड करे, मेजोरिटी पॉलिसी डिसीजन डिसाइड करे। ये एक इशू था। दूसरा मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि ये तो अभी चलो स्टार्ट हो गया, उस समय तो कुछ था नहीं। तो ये सब चीज़ें थी। और फाइनली जो चीज़ थी वो यही थी कि उस समय मुझे याद है बहुत सी NGO, रोटरी हो या लायंस हो या दूसरी हो, और जैसे हमारा ट्रैफिक पेट्रोल था, ये सब भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी ट्रैफिक रेगुलेशन में, एजुकेशन में। क्योंकि ये ट्रैफिक रेगुलेशन को एक लिमिट के बाद हम एनफोर्स नहीं कर सकते। इसमें एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, राइडर की, बाइकर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स भी है, जैसा बताया। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए बहुत सारे सजेशन हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, सब चल तो रहा ही, ऐसा नहीं है। स्टेट ट्रैफिक ब्रांच बन गया, अभी तो इतने सारी फोर्स हो गई हमारी ट्रैफिक की भी, पुलिस स्टेशन बन गए, पहले पुलिस स्टेशन नहीं होते थे। वो सब काम चल रहा है। और इसीलिए हमारी जो ट्रैफिक, हमारा जो सुरक्षा सेतु सोसाइटी है, उसमें आपने नोट किया हुआ कि ट्रैफिक इज ए वन ऑफ दी हमारा फोकस एरिया है, कि ये होना चाहिए। बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट है, और ये फिर भी चलता रहता है क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है,
सबकी अलग अलग सोच है, सबको तेज़ स्पीड में चलना है, तो हमें सबकी जवाबदारी है कि इसको कंट्रोल किया जाए. आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन डू. प्लीज. ये जो यूएस में, अमेरिका में जो ये ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वहाँ पे ऑटो सेंसर होता है, मतलब कैमरा सेंस ट्रैफिक. अगर मान लो कोई जैसे लेफ्ट एक ट्रैफिक जो सिग्नल है वो ईस्ट वेस्ट का 120 सेकंड का होता है और दूसरा मान लो 30 सेकंड से. अगर मान लो 30 सेकंड में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो उसका ऑटोमेटिक टाइम बढ़ जाएगा, और जो 120 में मान लो ट्रैफिक 0 है तो ऑटोमेटिक सिग्नल वो कम हो जाएगा, वो टाइमिंग. वो कैमरा सेंसिंग टेक्नोलॉजी है आईटी में, कंप्यूटर में. तो दैट सिग्नल टू बी ऑटोमेटिक लाइक अदर कंट्रीज. वो कर सकते. Sir, you mentioned about some unpopular suggestions that you had put forward. Sometimes we do have to take, such decisions or may have to implement that. I'll just give you an example of Singapore. In Singapore, the traffic on the roads is controlled by the government very strictly. There, if anybody has to buy a car, he has to buy a certificate of entitlement from the government. The cost of buying that certificate of entitlement is 106,000 Singapore dollars. Sometimes it is more than the cost of the car itself. So this is how they are controlling the vehicle density on the road. So here the things are completely different. I am not only concerned about Ahmedabad, I am just talking about things in general. That if we cannot control the number of vehicles on the road, the gentleman mentioned about the traffic in US and all that. Look at the vehicle density in those Western countries. There, in 100 meters, you will hardly find 2 or 3 cars. मतलब सिचुएशन बात तो वही है जो हमने आज से 30 साल पहले कही, या बात वही है ये कि डेंसिटी, जो आपने अच्छा वर्ड यूज किया कि डेंसिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका क्या तरीका है, किस तरह से होगा, ये हमें सब पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी कंट्रोल होगा. हाँ, लेकिन बाय द टाइम अथॉरिटी चेंजेस और वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे, तो उसको अगर हम कंटिन्यू करें सो दैट मेक्स द बेटर कम्युनिटी रिलेशनशिप. वन इज डायल 100. तो डायल 100 से हमने ब्लड अवेलेबिलिटी करवाई थी. मतलब कोई भी फ़ोन करता है डायल 100 पे और वो बोलता है कि मुझे ए पॉजिटिव चाहिए, देन वो पर्सन का नंबर अहमदाबाद रेड क्रॉस को आता था, एंड वी आर अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन कि आपको कहाँ पर ब्लड चाहिए, एंड वी मेक ब्लड अवेलेबल टू दैट पर्सन. वो 6 महीना आशीष भाटिया साहब ने ये इनोग्रेट किया था तो अब चला, लेकिन साहब डीजीपी हो गए और ये बदलियाँ हो गई, और फिर डाउन द जो ब्रिगेड थी उसको मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ. तो ये एक अच्छा हमारा इनिशिएटिव था कि हर एक को ज़रूरियात के समय ब्लड अवेलेबल हो जाता था. और पुलिस का हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी काफ़ी हुए. हर एक पुलिस स्टेशन में हमने कैंप किया, तब पुलिस ने लोगों को पार्टनरशिप के साथ ब्लड डोनेशन करवाया, और वही लोग को जब ब्लड का रिक्वायरमेंट था तो पुलिस ने सुरक्षा सेतु, मतलब पुलिस स्टेशन बिकम द ब्रिज बिटवीन कम्युनिटी एंड द डिपार्टमेंट. तो लोग जो डरते थे पुलिस स्टेशन से, उनको ज़रूरियात के समय ये एक हेल्प पुलिस स्टेशन से मिलने लगी. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था. दूसरा, भारत में 70% महिलाएं एनीमिक है, तो हमने एक ये इनिशिएटिव लिया था कि जो महिला पुलिसकर्मी और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके घर में जो महिला है, बहनें हैं, उनकी माताएं हैं, उनका हमने हीमोग्लोबिन टेस्टिंग किया, और उसमें से जो जिनका हीमोग्लोबिन कम आया तो हमने उनको आयरन सप्लीमेंट दिया, दैट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड विद द सरप्राइज दैट 70% आउट ऑफ 400 फीमेल कांस्टेबल विच वर टेस्टेड 6 months बिफोर, 278 फीमेल ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स आर फाउंड एनीमिक. सो हमारा पर्पज़ ये था कि ये महिलाएं इतना अच्छा श्रम करती है, समाज के लिए योगदान करती है, तो उनका हेल्थ मेंटेन करना इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसे कुछ प्रयोग किए जाए सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प द सोसाइटी टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द पुलिस एज वेल एज हमें भी अच्छा लगेगा कि जो पुलिस 24 आवर्स स्ट्रेस लेकर हमारे लिए कुछ काम करती है. तो वी वुड लाइक टू एसोसिएट विद दिस प्रोग्राम ऑफ सुरक्षा सेतु. And sir, these are my suggestions. So actually उसमें the output दिखेगा भी सही और appreciate भी होगा सर. अच्छा सजेशन है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुरक्षा सेतु सोसाइटी ने
इंडिया में 8 नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, आप उसमें से एक हो। हमने आपको ऑलरेडी एक लेटर लिखा हुआ है, पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला, हमारे पास कोई जवाब आया नहीं है। इंडिया में ऐसा ही चलता है। हमने सामने से लिखा हुआ है एनसीसी को, एनएसएस को, स्काउट्स को, रेड क्रॉस को, इको क्लब को, कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव और हमारे ऑब्जेक्टिव कई कॉमन हैं, हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट। तो एक आप हमारे से संपर्क कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, हमने एक लेटर लिखा हुआ है, आप उस लेटर का रिप्लाई दो। हम उसमें बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं। ऑलरेडी ब्लड डोनेशन कैंप होने चाहिए, ये हमारी जो अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो उसमें ये फोकस एरिया है। हमारा काम एट स्टेट लेवल एक पॉलिसी बना के दे देने का है, और हम उसको कोशिश करते हैं कि कैसे वो अमल हो। इसलिए आपको हमारी वेबसाइट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो एक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं, वो देखिए, तो उसमें ये काम आप आराम से कर सकते हैं। साथ में ही हमने एक और दूसरा इनिशिएटिव लिया था जब मैं सीआईडी क्राइम में था, लेकिन वो इनिशिएटिव अभी भी मुझे काम आ रहा है कि हमने गुजरात में रजिस्टर्ड एनजीओ की डिटेल मंगवाई थी कि कितनी है। तो काजल बहन भी हमारे पास, इन्होंने भी संपर्क किया। हमारे पास जो डिटेल आया उस समय, मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, करीब 2.5 लाख के करीब 2,40,000 करीब रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। तो हमने उस समय हर डिस्ट्रिक्ट और शहर को ये टारगेट दिया कि भाई एटलीस्ट कम से कम 5 एक्टिव विलिंग एनजीओ को जोड़ो और कुछ काम करो, महिला का, बच्चों का, जो भी है। क्योंकि सब एनजीओ का काम अगर देखेंगे तो बहुत से काम तो एक जैसे ही होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। ये काफ़ी का, तो अभी मैं पता कर रहा था बीच में, तो अभी वो 2.5 लाख से ज़्यादा, अब तो वो मेरे ख्याल 3 लाख के करीब पहुंच गया वो सब। तो हमारे पास इतनी संस्थाएं तो हैं ही। एक संस्था एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट, एक तालुका में भी काम करे तो बहुत काम हो सकता है। सो दिस इज आल्सो आवर वन ऑफ द आउटरीच प्रोग्राम, कि हम एनजीओ का भी साथ ले ही रहे हैं। आपकी तो नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा नाम है। हमने आपको लेटर लिखा हुआ है, आप चेक कर लो, आप हमारे से बात कर लो, हमने दिया हुआ है, आप आइएगा, हमने किया है। हमने सीपीआर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ही था, अभी हुआ था। और ये ब्लड डोनेशन कैंप का हमने फोकस एरिया किया हुआ है कि उनको करना चाहिए छोटे काम। मतलब एक कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें पेपर में दिखाई देते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, वो ठीक है हो गया, लेकिन एक्चुअल काम तो छोटा होता है। पुलिस स्टेशन लेवल पे एनजीओ के साथ मिलके वो करो, ऐसे बहुत से हमारे फोकस हैं जो कंटिन्यूस होते रहने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि बहुत काम हो सकता है। तो ये हेफाजत जो पार्किंग होती है, जहाँ का लोग पार्क करके चल देते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका डिसिप्लिन नहीं है। देखो कंट्रोल तो हमने बताया था ना उस समय, जैसे हमारी पहले टोइंग व्हीकल जो टोइंग है, वो टोइंग व्हीकल अगर यूज किया जाए, सिस्टम करें तो ज़्यादा अच्छा है। Those are not sufficient, sir. एक बड़े रास्ते पे एक टोइंग व्हीकल कितना करेगा? ये बात भी सही है, उसको एनफोर्समेंट करने का एक अलग चैलेंज है, कैसे एनफोर्स करें, उसको लाके कहाँ रखें। लिमिटेशन है सर, वो जो टो करते हैं व्हीकल, वो लोग ही हैं, मैन पावर यूज होता है, वही वो 8-10 गाड़ी उठाने के बाद तो उसके शोल्डर्स ले जाते हैं। इट इज यस, I tell you how Mumbai is managing this towing issue. They have a dedicated vehicle for every road. In Mumbai, you know, the vehicle density there is much more compared to Ahmedabad. So what do they do there? For every road they have dedicated towing vehicle which keeps taking circles. So if you park your car or a two-wheeler wrongly, in matter of minutes the vehicle is lifted and towed away. And they have enhanced it further that if somebody parks a two-wheeler also or on the middle of the road and goes away, within 2 minutes he will come back and he will say, please give me my vehicle back, I am here only. The police there, by scanning the number plate,
they try to figure out, are there any offenses registered against this vehicle as per their database? Because most of the people, don't pay their e-challans on time. So if any vehicle is caught wrongly parked like that, or in any other offense, the police officer on duty, if they are all traffic police men are given handheld devices, just by giving that number, now they have this computerized number plate also, they can easily figure out what are the accumulated e-challans. So they may allow that person to, take away the vehicle for wrongly parking it, but they do recover that e-challans, accumulated e-challans on the spot. अभी हमने एक सेकेंड, अभी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टार्टअप यूनिट है, वो आई हब है, आई ग्रेड, तो हमने उनको कहीं से आइडिया आया कि ये जो नए नए स्टार्टअप हैं, क्या इनके पास कुछ आइडिया है टू सॉल्व द ट्रैफिक इश्यूज, टू सॉल्व द अदर इश्यूज। तो उसमें एक दो कुछ ऐसे हमारे पास आए हैं, उनका ऐसा कहना है कि जैसे एनफोर्समेंट के लिए जो हम मैन पावर लगाते हैं, वो दूसरी तरीके से भी हम उनका मोबाइल से रिकॉर्ड करके या वो करके भेज सकते हैं आपको, साहब आप उनको उठाओ पकड़ो, तो हो सकता है। नहीं, लेकिन मुंबई में जो है ना, ये ट्रैफिक डीकंजेशन प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन मेरा जो यहाँ रोल है वो इतना एक्टिव रोल इस चीज़ में नहीं है। मैं यहाँ समझने आया हूँ, ठीक, जो मैं समझ रहा हूँ अभी तक ट्रैफिक में ही सब इन्वॉल्व हो गए, अभी ट्रैफिक से बाहर निकले, मैं समझ गया हूँ, एंड आई विल कन्वे टू दी कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफिसर कि दिस इज द प्रॉब्लम, नो बर्निंग इशू। तो हमने दूसरे इशू भी जो है हमारे, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर। हाँ, मैं आप बोलते नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू दवे, रिटायर्ड सुपर क्लास अधिकारी गवर्नमेंट। My name Manju Dave and retired government सुपर क्लास 1 गेजेटेड अधिकारी। मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है कि अभी तो गवर्नमेंट ने 33% लेडीज़ के लिए रिजर्व कर दिया है, सब संसद में भी वो सीट रिजर्व कर दिया और ऐसे भी कर दिया। और मैं सीनियर सिटी, आपका एक बहुत अच्छा वो स्कीम है सीनियर सिटीजन का, उनकी मैं मेंबर भी हूँ। तो क्या है कि मेरा एक दूसरा बंगला है, मेरा खुद का है, वो मैंने लेडीज़ को किराए पे दिया है। जॉब करती कोई लेडीज़ हो या तो कोई स्टूडेंट हो जो जिसको पर्सनल रूम, एसी रूम चाहिए तो उसमें रहने के लिए चाहिए, तो मैं उसको किराए पे देती हूँ और मैं मेरे मिस्टर दवे के बंगले में रहती हूँ। तो अभी वो सोसाइटी वाले का ये बाइलॉज में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को किराए पे देना, किसी को नहीं देना। तो इस मेरे जो किराएदार है उसको बहुत परेशान करते हैं सोसाइटी वाले, सब मिल जाते हैं कि किराए पे देने का ही नहीं देना है, तो मैरिड लोगों को ही देने का है। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन मैं हूँ तो मैं पुलिस में फ़ोन करती हूँ तो वो लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ये काम तो हमारा नहीं है, ये कानूनी काम है, तो आप उसको मत किराए पे दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप उसमें भी लेडीज़ है तो मान लो 16 साल की लड़की को एक रूम चाहिए, उसका खाना बाहर से आता है, जो टिफ़िन आता है तो टिफ़िन वाले को आने नहीं देते, और वो हमारे घर के पास सब 5-6 कैमरे लगा दिए हैं और उसको मानसिक तंग करते हैं, आवाज़ करते हैं, थाली बजाते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो बार बार, एक बार तो मैंने उन लोगों ने पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी बंगले की सोसाइटी ने, तो मैंने पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस पकड़ के ले गई, उसको बिठा दिया। लेकिन वो तो बार बार करते हैं ऐसा। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं पुलिस में जाके फरियाद करूँ, FIR दाखिल करूँ। नहीं, उसमें का देखो, उसका रास्ता तो ये है, वो लड़की भी तो कर सकती है जो रहती है वहाँ, वो कोई पढ़ती है, नौकरी करती है, उसके पास भी साहब टाइम नहीं है। मेरी बात सुनिए, हाँ, आप सीनियर सिटीजन हो गए, आपके पास भी कुछ हक है, वो हमने कवर किया हुआ है। हाँ, हमने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी बताया, उसके पास भी है। आप सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, हाँ, कायदा को आपको हिलाना ही पड़ेगा। पहला स्टेप आप ही को, जो विक्टिम को ही लेना पड़ेगा। कोई चमत्कारी चीज़ बाहर से आ जाएगी वह पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस को तो आपको कहना पड़ेगा। हमने ये कर दिया कि अभी
सिटीजन पोर्टल बना दिया, अब मोबाइल हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दो, हेल्पलाइन आपके घर भी आ जाती है, वो सिस्टम है, बहुत अच्छा काम ठीक है ना। करती है। कंट्रोल हाँ, रूम ये- पे नंबर है, वो आ जाएगी। सिटीजन पोर्टल पे आप अपना जवाब लिखवा दो। अगर उस लड़की है कोई परेशान करता है तो वो कंप्लेन कर सकती है। सामने तो आना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में सामने आना पड़े, मतलब कोई छुप रख के अब मैं छुप जाऊं और दूसरा आके चुपचाप मदद कर जाए, अभी शायद ऐसा सिस्टम नहीं है। प्लीज़ નહીં મેં ઉનકે નહીં નહીં એક મિનિટ આમના પ્રશ્નનો જવાબ આપી દઉં. આપનો જે પ્રશ્ન છે ને સિનિયર તમારા જે આમાં એવો નિયમ એવો છે કે તમે કોઈ સોસાયટીમાં એવી વ્યક્તિને ના રાખી શકો જે બીજા લોકોને અડચણરૂપ હોય, એવો નિયમ. એટલે અડચણરૂપ હોય, એમને ગમતું ના હોય તો પણ એ લોકો વાંધો લઈ શકે એવો નિયમ છે. એટલે આના માટે તમારે ખાલી કેસ જ કરવો પડે અને ન્યાય લેવો પડે કે ભાઈ હું આમાં શું કરું એમ, એવો નિયમ છે. ये पीयूसी जो है तो अभी नई गाड़ी होती है तो वो 1 साल के बाद वापस पीयूसी करवाना पड़ता है, तो वो तो गलत है ना। अभी तो सब अच्छे स्टैंडर्ड से गाड़ियां बनती हैं, तो वो लॉ चेंज, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उस डिपार्टमेंट को हम कन्वे कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट तो पुलिस हाँ करती है। नहीं कोई बात नहीं, इसको ठीक है। पुलिस तो देखो एक बात बता दूं मैं, पुलिस जो है, पुलिस का तो कोई काम है ही नहीं, पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस जो बुरी बनती है, कोई काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कोई काम एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कोई काम लेबर डिपार्टमेंट का, कोई काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, उनके मुद्दे हैं, उनके मुद्दे से पब्लिक सरकार के सामने खड़ी है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके वर्कर के साथ में हमारा पुलिस का क्या लेना देना, हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वी आर दूसरों के मुद्दे, दूसरी पार्टी उसको बचाने में, क्योंकि हमारा एक ही काम है सिक्योरिटी, शांति, पीस, इसलिए हम हैं। तो हम जो मुद्दे हैं, इसलिए ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, जो मेरा प्रिय मुद्दा है। मैं ये कहता हूँ कि सुरक्षा सेतु सोसाइटी एक थिंकिंग टैंक है, थिंकिंग टैंक है। तो हमारी थिंकिंग में यही आता है कि पुलिस अपनी गलती के तो काम कम करती है, या अपने खुद के काम तो कम करती है, दूसरे डिपार्टमेंट के काम से लोगों का सेटिस्फेक्शन ना होना, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है उसमें ज़्यादा उलझी रहती है। आपने कोर्ट का तो बोला नहीं, कोर्ट के समझ करती है, कोर्ट का जो काम करती है पुलिस, वो तो आपने बोला नहीं। मतलब जो भी है कोर्ट के, वो दूसरे डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ है। हाँ हाँ प्लीज। मैंने वही बोला ना, कभी भी हमको पुलिस रोकती है तो पीएसयू सर्टिफिकेट मांगती है, पीयूसी सर्टिफिकेट मांगती है, तो ये तो गलत है ना सर। मिसयूज ऑफ पुलिस। मैंने पुलिस को भी ऐसा बोला है कि भाई ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आरटीओ की। तो उसने क्या बोला? आपने जब बोला तो उसने कुछ बताया? वो थ्रेटन देते हैं। नहीं थ्रेट नहीं, उसने कुछ बताया कि भाई मेरी भी ड्यूटी है नहीं, कोई कुछ उसने आपको मतलब कोई क्लोज बताया हो कुछ? मैं सर उदयपुर से आ रहा था तो बीच में रोका मुझे और पीएसयू सर्टिफिकेट मांगा मुझे, तो मैं बोला मेरे पास पीएसयू सर्टिफिकेट ओनली फॉर आरटीओ जिम्मेदार है उसके लिए, आप नहीं मांग सकते। तो वो बोला नहीं कुछ भी, तो दैट इज अ थ्रेटन टू द। आपने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का तो नाम सुना ही होगा। यस सर। और अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट में चल ही रहा है, आपको याद हो तो, हेल्पलाइन के लिए। तो हम आपको एम्पावर करने का ही काम मेरा है सुरक्षा सेतु का। आई एम एम्पावरिंग यू, आई एम एम्पावरिंग यू अगेंस्ट wrong action, inaction of any government officers including policemen। उसके लिए अगर पुलिसमैन ने गलत किया है, अगर उसने करप्शन वाला काम है, एसीबी है, नॉन करप्शन वाला परेशान किया है,
तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, एट स्टेट लेवल पर है, तो उसका नंबर वगैरह तो वेबसाइट में तो है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको नहीं, ऑलरेडी है तो सही ना, एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो तो बोलते हैं कि भाई ये आरटीओ का जिम्मेदारी आप क्यों हमको पूछते हो, तो वो कुछ आगे नहीं बोलते हैं। एक्चुअली मैं इसके बारे में कोई कमेंट अभी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ट्रैफिक लॉ पढ़े नहीं है। बहुत दिनों कुछ अमेंडमेंट हो गया हो कोई, क्योंकि गवर्नमेंट, आप समझिए गवर्नमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से रेजोल्यूशन आते हैं, कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट को ज़्यादा अपडेट रहता है। आई एम नॉट अवेयर। हाँ, वो तभी हाँ, Hello sir, good evening. So my name is Harsh Gosalia, and maybe one fine day I also aspire to be a civil servant. So sir, my question to you is connecting the dots and everything. Sir, we have seen the issues and everything is there. So my basic question is that how are, sir, as you are, very soft approach and everything is there. Like when we go down the hierarchy or something like that, how are police officers trained for soft skills to approach? How do they, instead of as you are an IPS officer and you approach in a very soft way, then how they are trained to approach the same? मैडम भी कुछ पूछना चाह रही थी। जो प्रॉब्लम सर ने पॉइंट आउट की थी कि कई बार पुलिस ऑफिसर्स जब कॉन्फ्रंटेशन के टाइम पे आता है तो कई बार दे आर नॉट वेरी easy to talk to or express, we cannot express our problems to them. Sometimes questions related to sexual crime, sometimes women might not be even comfortable to approach police officers for that matter. Are there any training programs for police officers to improve? आप जवाब दीजिए ना, आप दीजिए। Yeah, thank you so much ma'am. आप बताइएगा। इसके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जितने भी FFWC के टीम मेंबर्स हैं वो लोग काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे FFWC की टीम जाती है और रिजोल्यूशन के लिए, और बेस लेते हैं पुलिस स्टेशन, मतलब नियर बाय पुलिस स्टेशन है। अगर कोई बच्चा खो गया है तो हमारे पास उनका डेटा आता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी पता चला कि यहाँ से खो गया है, कोई जगह से पर्टिकुलर कोई जगह से खो गया है, तो हम वहाँ के आजू बाजू के कैमरा सेटिंग, क्योंकि हमारे पास भी छोटे से राइट्स हैं, हम भी पूछ सकते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस स्टेशन को। और एवरी टाइम अगर पुलिस स्टेशन की बात करें और पुलिस मेंबर्स की बात करें ना, तो दिन के 500 केसेस आते हैं, वो फिल्टर करो, फिर उनके ऊपर काम करो, तो उनके पास उनके खुद के लिए टाइम नहीं होता, बिकॉज ऑफ कि हम बहुत नज़दीक से उनके साथ काम करते हैं। जो आपने ऐसा बोला कि ट्रेनिंग जो होता है, तो वो ट्रेनिंग भी उनका होता है, पर उसके अंदर पर्टिकुलर आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, फिर आपको उनकी आदतें पता चलेगी कि वो कैसे काम करते। उनका नाइट शिफ्ट, उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको ब्रेक्स नहीं मिलते, उनका नाइट शिफ्ट में मतलब कोई भी डेज नहीं होते। जैसे ही अगर ऐसा लगता है जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं तो उनका जो टाइमिंग है वो डबल हो जाता है। तो वो सब चीज़ वो फेस करते हैं, जो मैं भी देखती हूँ। हम लोग भी बोलते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ काम हो तो बता दीजिएगा, बट वैसी सब चीज़ें वो होती है। पर FFWC अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको खुद को भी बहुत सारी चीज़ पता चलेगी, वो कैसे काम करते हैं, कैसे बैरियर से निकलते हैं और आपको कैसे इन्वॉल्व करते हैं। उनको भी सर की तरह काम करना है, बट कैसा होता है कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप जुड़े तो मोस्ट वेलकम है। मैं भी सर की तरफ से भी बोलती हूँ कि मोस्ट वेलकम है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है। हमने जितने भी चीज़ें ऐड की है 17 पैरामीटर्स के, हम लोग इस पे काम करेंगे। हमको पॉश के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 33% जो है वो फीमेल्स का हमारे पास आ गया है डमडम कि भी हम लोग 33% जो है वो फीमेल सब जगह पे जुड़ेंगी, काम करेगी। 50% है, और जितना भी है अवेयरनेस है कि फीमेल्स भी अभी बाहर आ रही है, पर अवेयरनेस नहीं है पॉश के रिगार्डिंग। उसका एक ट्रेनिंग होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो भी जो भी GIDC है, जो कंपनी में छोटी से छोटी कंपनी में काम करते हैं वो लोगों के पास, क्योंकि बड़े में तो कॉर्पोरेट्स हो तो वो लोग ट्रेनिंग देते ही है,
बट जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, एसएमईज़ है, वो लोगों को ट्रेनिंग नहीं पड़ती, क्योंकि जब जाते हैं तब वो चीज़ें फेस करते हैं। तो हम अपना जो एडेंडम है उसके अंदर ये ऐड कर ले, और जैसे हम गुड टच बैड टच वगैरह सब चीज़ कराते हैं, वैसे ही हम पॉश का भी ट्रेनिंग करवाए। तो ये सजेशन है मेरी तरफ से, अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत जगह पे जीआईडीसी पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फीमेल वहाँ पे सबसे ज़्यादा आजकल काम करती है। थैंक यू। सर डिपार्टमेंट ओके सर डिपार्टमेंट कई अच्छी एक्टिविटीज़ करता है, तो सुरक्षा सेतु के जरिए पुलिस का और मीडिया का भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मीडिया के जरिए ये पुलिस की जो सक्सेस स्टोरी है दैट इज़ हेल्पफुल टू द सोसाइटी, अगर वो हाईलाइट की जाए तो भी पब्लिक का और पुलिस का एक रिलेशनशिप बढ़ेगा। जनरली नेगेटिव जर्नलिज्म ही चलता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टोरीज है, किसी पुलिस ने हेल्प की, किसी को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अगर वो सुरक्षा सेतु के जरिए कॉमन मैन तक ले जाया जाएगा तो भी एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। सर दिस इज माय सजेशन। थैंक यू। ओके Sir, how can corporates actually get in touch with you and take this initiative forward? Because I heard all the comments, but most of them personal, some of them are talking about highways and all those things. But मेरा ऐसा कि आपने बोला 12 साल से it's there in the system, but people are still not aware. As a common man, I was not aware. मुझे आज पता चला कि सुरक्षा सेतु करके कुछ नहीं है. Till now, I was not aware. So अभी तो बहुत सारे लोगों में जिनको अभी भी पता नहीं चला, आगे भी पता नहीं चलेगा. It will take another 12 years for people to understand. सर जो गवर्नमेंट So my question, sir, I'm part of Reliance. I'm the head of investigation for the entire Reliance retail, and I work with bomb diffuser squad in the special operations group every month in my malls to communicate to the people. And last month मैं राजकोट के IPS क्राइम ब्रांच पार्षद सिंह गोयल जी को भी मैं मिलके आया for taking this initiative forward, for connecting people. How police can be more helpful to the people through our networks, because we have a very strong network. We have more than 700 stores across Gujarat, which I take care of in terms of security, safety, investigations, and crime control. So how can, if we want to connect and take this forward, how can we go ahead and do that? एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव सजेशन है। एक बार अच्छी बात है। हाँ अच्छा। पूरा साल हम देख लेते हैं कि हमने सब काम कर दिया, फेस्टिवल्स आ गए, नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, पर हम ये नहीं सोचते कि इतने पूरी मेहनत में पुलिस वालों को हमने थैंक यू लेटर नहीं भेजा, हमने उनको शाबाशी नहीं दी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम पुलिस वालों को भूल जाते हैं। मैं कवर कर लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा कवर करता हूँ ताकि कई चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अभी बीच में आप ही ने शायद बात की थी कि जैसे बॉम्बे में उमंग प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। 2 बार हमारे यहाँ भी हो चुका है इसी साल। मेरे पास पुलिस वेलफेयर का भी काम मैं ही देखता हूँ। ये तो सुरक्षा सेतु में तो जनरल पब्लिक का कोऑर्डिनेशन हो गया, उनकी सिक्योरिटी। पुलिस मैन का वेलफेयर डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। उनके जो वेलफेयर का हमने एक ऐसा सिस्टम अभी बनाया था कि जो पुलिस मैन है, जैसे आपको आइडिया हो, वो कहाँ रहते हैं? पुलिस लाइन में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं, या अलग अलग प्राइवेट रहते हैं। तो हमने उनका वेलफेयर, अभी तक जो कमेटी थी, एक डीवाईएसपी हेडक्वार्टर, एक क्लर्क और एक एसपी होके उन्होंने उनका पुलिस उनको क्या चाहिए वो डिसीजन लेते थे। हमने उसको कमेटी को एक्सपेंड किया, उसमें लेडी को लिया, उसमें सीनियर सिटीजन को लिया, उसमें युवा को लिया, कि भाई काम वेलफेयर इनको लेना है कि एसपी को लेना है या क्लर्क को लेना है? इनको लेना है, इनसे पूछो ना। इनको जो हमारी वेलफेयर की जो भी स्कीम है, वेलफेयर की 48 स्कीम है, शायद आप पता है कि नहीं पता। 48 वेलफेयर की 48 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो हम पुलिस वालों के लिए करते हैं। पुलिस वालों के लिए अलग अलग लोन्स, एड, कंसेशन वाला वो हम उनको देते हैं, वो भी सब हम अच्छी तरह से करवा रहे हैं।
तो ये हो गया पुलिस वेलफेयर की बात। जब भी कोई अच्छा बंदोबस्त पूरा होता है, हमारे यहाँ सिस्टम में वायरलेस से मैसेज जाना, फैक्स से मैसेज जाना, या रोल कॉल, जब शाम को या सुबह सारे पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं तो उनको वर्बली कन्वे कर दिया जाता है कि भाई आपके काम की तारीफ, बड़ा अच्छा बंदोबस्त हुआ, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ, आपको कंग्रेचुलेशन है, आपको अच्छे वर्ड, ऐसे कह दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कहा जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा, अगर आप हमारी वेबसाइट देखें तो उस वेबसाइट के जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स उसमें ये लिखा हुआ है, वी विल कोऑर्डिनेट विद कॉरपोरेट, एनजीओ, बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, अदर रिलेवेंट टू एंश्योर दैट वी पब्लिक इज सेफ एंड सिक्योर्ड। तो आज तक तो कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं। हमने रेड क्रॉस को जैसे लिखा, हमने कई डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, हमने दूसरे डिपार्टमेंट को भी लिखा है। हमने फ्रेंड्स फॉर रिफॉर्म्स, जैसे मैडम हैं FFWC, क्या आपको पता है FFWC का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो आपने FFWC तो बोल दिया, पर इनको तो पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। जब मैं CID क्राइम में महिला सेल और ये सब देखता था, जब मेरी बदली हुई थी पहले 10-12 साल पहले, उस समय जब आनंदीबेन CM पटेल CM थी, उनके हाथों से ये प्रोग्राम इनागुरेशन कराया था, जिसको आप फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बोलते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इज मेंट फॉर पुलिस स्टेशन लेवल, फॉर ट्रैफिक थिंग्स, फॉर पीस टॉक्स, फॉर जनरल कोऑर्डिनेशन, उसके लिए। FFWC जो वुमेन और चिल्ड्रन के इशू को ही डेडिकेटेड है। ऐसे हमारे पास उस समय हमने 2000 लोगों को जोड़ा था। तो मुझे उससे क्या फ़ायदा हुआ? आपने लाइव देखा, इन्होंने शिकायत की, फट से जवाब मिला, दोनों पब्लिक के आदमी, ये हमारा फ़ायदा हुआ। सो दे आर आवर गुडविल एम्बेसडर्स। तो जिन्होंने हमारे से काम किया है, दे विल से गुड थिंग अबाउट थिंग, पर जिनका हमारे से संपर्क हुआ ही नहीं, सो दे हैव सम परसेप्शन। तो परसेप्शन मैनेजमेंट का काम भी हमारा है, कैसे परसेप्शन को पॉजिटिव किया जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर यहाँ आया हूँ तो बहुत से मन में शायद जो नेगेटिव होगा वो निकल के शायद पॉजिटिव हो जाए। और आप अगर हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमने अच्छे अच्छे काम, जो आप कह रहे थे कि पता चलता नहीं है, पेपर में आता नहीं है, हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं बहुत सारे। उसमें अभी आज के दिन में मैं देखा था 282 वीडियो हमने डाल रखे हैं। वो हमारा वो वीडियो फ्रॉम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत हाई क्वालिटी के नहीं है उसमें, पर उसमें हमारा कंटेंट, हमने क्या काम किया, वो उसमें रिकॉर्ड है। उससे आपको ये जरूर पता चल जाएगा, इंडेक्स आप देखेंगे कि नारकोटिक्स में हमने क्या किया, उसमें क्या किया। अभी हमने लेटेस्ट, अभी हमने ये काम दिया है कि बहुत सी एक NGO हमारे साथ, जो NGO जुड़ी हुई हैं, उनको हमने ये काम दिया है कि आप कॉरपोरेट को अप्रोच करो, उनका ऑब्जेक्टिव देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव देखो, इस ऑब्जेक्टिव को मिलाओ। किसी को स्किल देना हो, किसी को रिहेबिलेट करना हो, क्राइम में फंसी लेडी है या बच्चा, उसको बाहर निकालना हो, कोई कम्युनिटी रिलेशन अच्छे करना हो, तो उनसे मिलके आप काम कराइए, खर्चा वो थोड़ा बहुत दे देंगे, आप काम हो जाएगा। उनका काम भी हो सकता है, हमारा काम भी हो सकता है। एंड आई हैव अगेन, जो आपकी तरह से जनरल पब्लिक होगी वो हमारी गुडविल एम्बेसडर, पॉजिटिव चेंज हो जाता है, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो हम इस तरह से कॉरपोरेट के साथ अलग अलग एंगल से, किसी भी अगर हमारे ऑब्जेक्ट में आप विलिंग हैं तो हम काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोविड के टाइम में होगा या कोई इमरजेंसी होगी तभी होगा। नॉर्मल कोर्स में भी हम अलग अलग काम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वुमेन्स, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, नारकोटिक्स, ट्रैफिक,
इवन साइबर क्राइम के ऊपर हमने बहुत काम किया। हमने गरिमा का आपने नाम सुना होगा, हमने सर्वे भी बहुत हुए। 3 लाख लोगों का सर्वे गरिमा प्रोजेक्ट के अंदर हम कर रहे हैं, सुरक्षा सेतु के अंदर कर रहे हैं। लोगों से पूछ ही रहे हैं, बताओ भाई क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम थी, आपको क्या लगा, आपकी क्या सजेशन है। तो इस तरह से लाखों लोगों हम कह सकते हैं कि जो हमारे टच में, रिकॉर्ड पे टच में है, हवा में नहीं है, रिकॉर्ड में टच में है। हमारा जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया, जो अभी सब हमने अभी बनाए हैं 4-6 महीने मेरे टाइम में ही, जो वेबसाइट बनाई वो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंटेड है। उसमें संख्या आपको मिलेगी। जब अभी हमारा मेरे ख्याल में 36,000-37,000 सब्सक्राइबर उसके वो व्यूज हो गए हैं हमारे यूट्यूब के। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें, देखें, नए आइडिया लाएं और आगे बढ़ें। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। टाइम इज आल्सो ओवर। आई हैव बीन डायरेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। I would really request all of you that whatever questions you have, some of them sir has answered, rest you can mail to us, right, and we'll forward it to sir, and we'll hope for a very short reply. So I would like to now thank sir with the vote of thanks. So yes, Pratham sir, this was indeed a amazing session that you had, and obviously thanks to the participants that they have participated and interacted very well. Your humility is actually very inspiring, at least for me. The way you have shared information and knowledge on various initiatives that police has taken in order to bridge the gap or a sense of lack of belongingness between the police and the community. So you are catalyst in that matter. The Suraksha Setu initiative is an added feather to it. I would request that we all take this forward. जैसे कि सर ने बताया कि if उनको आप संपर्क नहीं करोगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स है या फिर व्हाटएवर जो परसेप्शन बन रहा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. So let us take this forward, and on whatever occasions you get to interact with the police community, you can please do that. There are other modes also that sir has mentioned, the website and the other information channels. You can subscribe to that, and with that, once again sir, I would like to express my sincere gratitude that you took out your valuable time and delivered this amazing session here. So thank you so much all of you. We'll end with a round of applause for Pratham sir. Thank you so much. Good night.